आज हमारे बीच पूज्य श्री भूपेंद्र भाई पंड्या यहाँ पर उपस्थित है। श्रीमद् भागवत और गीता के अनन्य उपासक, कथा गायक और हमारे उत्तम वक्ताओं में से एक है। मैं श्री भूपेंद्र भाई जी को निमंत्रित करता हूँ यहाँ आए और अपना वक्तव्य दे। श्री भूपेंद्र भाई पंड्या। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। समन्वय एवं संवाद प्रिय साधु पूज्य बापू, फैकल्टीज, alumni, students and staff of Harvard University, this esteemed institution, સંધ્યાના રંગોથી સુશોભિત આ ઋતુમાં ડોલરના દેશમાં રામકથાનું પાવન અનુષ્ઠાન કરવા એકત્રિત થયેલા આત્મીય સંતગણ અને સ્વજનો, वाल्मीकि रामायण के 100वें सर्ग में 72वां श्लोक, उस पर बापू कुछ क्षण चिंतन करना चाहता हूं। प्रसंग आपको बता दूं, इट इज एन इवेंट वेयर इन द चित्रकूट भरत जी गोज टू मीट श्री राम एंड ही वांट्स राम टू बी बैक इन अयोध्या. With various options, Bharat ji goes. Now, most of the times, especially during entertainment industry or in TV serials, we perceive this event as a melodrama. Both the brothers offering the throne to each other. Nobody wants to go back. And we highlight this issue as a Tyaga Bhavana, which is correct. That it can only happen in India when two brothers are not fighting for the throne, but they want to give it to each other, which is good. But in this melodramatic representation, most of the time we miss what Valmiki wants to suggest here in the 100th chapter of 100th Sarga of Valmiki Ramayana, Ayodhya Kand. There are 76 verses in this Sarga. If you just put aside first 3 introductory verses and the last verse, which is of Falashruti, in the remaining 72 verses, Sri Ram has given a wonderful explanation of what Valmiki Ramayana says, Rajniti. But as the word Rajniti, politics is an untouchable word in the modern world, we want to put it as a Ramniti or Ramrajyaniti. And the shlok that I am referring to is 72nd verse, in which Sri Ramchandra ji asks Bharat, Kachitte safala vedaha, kachitte safala kriyaha, kachitte safala daraha, kachitte safalam shrutam. भरत, तुम ठीक तो हो ना? शुरुआत में पूछा माता पिता की सेवा करते हो, गुरु की सेवा करते हो। इससे आगे बढ़ते हुए फिर जब श्री रामचंद्र जी भरत से कहते हैं कच्चित्ते सफला वेदाहा, अब देखिए पहले 3 शब्द तो वही है, कच्चित्ते सफला, कच्चित्ते सफला। पहले चरण में पूछा कच्चित्ते सफला वेदा,
दूसरे चरण में पूछा कच्चित्ते सफला क्रिया, तीसरे चरण में पूछा कच्चित्ते सफला दारा, और चौथे चरण में पूछा कच्चित्ते सफलम श्रुतम। वेदः, क्रिया, दारा और श्रुतम। Is it successful? It is meaningful. Is it fruitful? Vedaha. By Veda, we means Ved to know, wisdom. I don't use the word knowledge for Veda. It's wisdom. It's definitely not information. It's wisdom. Wisdom which is, after you assimilate the knowledge, after you put it into practice, and what dawns into you is wisdom. You don't have to memorize wisdom. Wisdom is your part and parcel. It is your being. Sri Ram asks Bharat, is your wisdom successful? Is your wisdom meaningful? Secondly, कच्चित्ते सफला क्रिया, तुम्हारी क्रियाएं तो सफल है ना भरत? Actions, are your efforts successful? Third, कच्चित्ते सफला दारा, दारा literally means स्त्रियां, women of the royal family of the Ayodhya kingdom. Now most of the translators have translated this verse as कच्चित्ते सफला दारा, are your women producing good children? I beg to differ. Just creating progeny is not the only purpose of women folk. I'll come to that when I explain this. And kacchitte safalam shrutam. Whatever you have heard, is it meaningful? Shastra Gyan, Shastra Sravan, is it meaningful? Let us understand this beautiful verse by none other than Sri Ram. I was talking to the saints who have come from India, and I was talking, how was your experience? Because most of them have come for the first time. बड़े संतगण पहली बार पधारे हैं यहाँ पर अमेरिका में. पूछा क्या इमिग्रेशन में? Even you, the visitors who are coming from other countries, and you cross the immigration, the officer asks you, what brings you here? That's the question they ask. क्यों आए हैं इमिग्रेशन में? बापू यहाँ आवे એટલે પહેલો પ્રશ્ન પૂછે શું કામ આવ્યા? What brings you here? Your purpose of visit. And those who are US passport holders, when they go to immigration, the officer asks them, how was your trip? Where did you go? And while stamping, they will say, welcome home. ये दो बातें जब मैंने देखी, मुझे लगता है spiritually, this is what the life of a Jivatma is. What is the purpose of your being here? And वहां से जो यात्रा शुरू होती है, अल्टीमेटली परमात्मा से जब मिले तो प्रभु कहेगा वेलकम होम. पर्पस से प्रभु प्राप्ति तक, यही तो श्रीमद आदि शंकराचार्य भगवान ने भी कहा चरपट पंजरिका सूत्र में, कस्त्वम को हम कुत आयात कामे जननी कोमे तात इति परिभावय वारंवार. तो ये बार बार सोचो, और वहां से फिर व्हाट इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन? आत्मशतक में भगवान कहते हैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. द फीलिंग ऑफ अराइव्ड, द सेंस ऑफ अराइव्ड. कच्चित्ते सफला, जीवात्मा का परम लक्ष्य क्या हो सकता है? श्रेष्ठ लक्ष्य क्या हो सकता है? वो एकमात्र है आनंद की अनुभूति. अब इसको भक्ति मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग की दृष्टि से नॉमेनक्लेचर अलग अलग करें, हम उसे प्रभु दर्शन कहें, आत्म साक्षात्कार कहें, आनंदानुभूति, ईश्वरानुभूति कहें, और ये परम की प्राप्ति के लिए द गोल्डन अपॉर्चुनिटी इज दिस ह्यूमन बर्थ. सभी शास्त्रों में, विवेक चूड़ामणि में भगवान कहते हैं जंतु नाम नरजन्म दुर्लभतरम पुंस्त्वम ततो विप्रता. श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय के पहले श्लोक में प्रहलाद जब असुर कुमारों से उपदेश करते हैं तब कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम.
दुर्लभम मानुषम जन्मम अर्थदम मानुषम जन्मम तदपि अध्रुवम मानुषम जन्म। मानुष्य जन्म दुर्लभ है, अर्थद परमात्मा की प्राप्ति केवल मानुष्य जन्म में ही हो सकती है। तो ये दो श्रेष्ठ है, दुर्लभ भी है, अर्थदम भी है, लेकिन एक ही समस्या है, अध्रुवम है, टेम्पररी है, इट कम्स विथ एन एक्सपायरी डेट। श्री रामचरितमानस में भी उत्तरकांड में बड़े भाग मानुष्य तनु पावा। तो ये जो मनुष्य जन्म है, इसमें आनंद अनुभूति में एक भूल most of the people commit, and that is why they miss out this golden opportunity. वो भूल क्या है? In the experience of pure bliss, most people दुख के नाश को ही सुख समझते हैं और सुख की प्राप्ति इंद्रिय विषय संयोग को ही आनंद समझते हैं। वस्तुतः आनंद ये सुख और दुख दोनों से पार होने की प्रक्रिया है। या तो सुख और दुख दोनों का स्वस्थता पूर्वक स्वीकार करने की प्रक्रिया है। भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ दर्शन में और दूसरे अध्याय में प्रभु ने कहा, दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धायुजस्व। और स्थित प्रज्ञ में 56वें श्लोक में कहा, दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः। तो इसको आनंद कहें। कच्चित्ते सफला क्रिया। श्री रामचंद्र जी पूछते हैं भरत से, तुम्हारी क्रियाएं सफल हुई? क्रियाएं सफल कैसे होगी? भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं निष्काम कर्म योग जब भी होगा तभी क्रियाएं सफल होती। पीपल अंडरस्टैंड दैट my efforts are successful when I gain something, when I receive something. While in the spiritual world, the beauty is, as Immanuel Kant, the famous German philosopher says, it's a flowering of a pure act. जैसे एक पुष्प खिल जाता है, ऐसे आपकी क्रिया भी पुष्प की तरह खिल जाए, बस खुशबू अपने आप फैलेगी, सुगंध अपने आप फैलेगी। कोई सुगंध ले सके उसका सद्भाग्य, कोई न ले सके पुष्प को उससे कोई चिंता नहीं। इस निष्काम कर्मयोग। प्रिय स्वजनों, आज के युग में, स्पेशली व्हेन वी आर लिविंग इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, while giving interview to Meera and yesterday I said one thing. सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स को मैनिपुलेट करके यंग जनरेशन के वल्नरेबल माइंड्स को टारगेट करना, इंस्टिगेट करना, मिसगाइड करना, ऐसे जो डिस्ट्रक्टिव एफर्ट्स चल रहे हैं समाज में, एंड द यंग माइंड फील्स दैट ओ आई फाउंड समथिंग ऑन नेट। आई फाउंड, यू डिड नॉट फाउंड, यू वर टारगेटेड, you are given this। ऐसे जो, और एक दूसरी बात जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो रही है, मैन क्रिएटेड द मशीन पॉपुलरली कॉल्ड एज कंप्यूटर टू मेक लाइफ सिंपल, एंड नाउ इन दिस एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस कंप्यूटर, द मशीन इज आस्किंग द ह्यूमन बीइंग टू प्रूव दैट ही इज नॉट अ रोबो। Before you enter into any website, before you take desired results from this machine, the machine tells you to prove that you are a human being and not a robot. Isn't it funny? Isn't it worrisome or concerning thing that a machine is asking you, the machine which is created by you is asking you to prove that you are not a machine and you are a human being. Only then the machine will work for you. And this is artificial intelligence. Just think about what's going to happen when super artificial intelligence will come in. માણસ મશીન ન બની જાય એનું ધ્યાન રાખવાનું છે અને મશીન માણસ ન બની જાય એનું ધ્યાન રાખવાનું છે. કારણ
क्लोनिंग के फील्ड में बहुत अच्छी सफलता पाई। दे क्रिएटेड मैरी लैम्ब, बना दिया, लेबोरेटरी में जीव उत्पन्न कर दिया। चौंक गए, रोक दिया उस क्षेत्र, उसको रिस्ट्रिक्शन लगा दिए इस फील्ड में रिसर्च को। बट क्लोनिंग के फील्ड में रिसर्च को जो रिस्ट्रिक्शन लगाए, उसका बाय प्रोडक्ट हुआ रोबोट्स एंड ह्यूमनॉइड्स। उसको तो रोक नहीं सकते। खैर, तीसरा विचार श्री रामचंद्र जी भरत से पूछते हैं, कच्चित्ते सफला दारहा। पूज्य बापू 2 दिन से जब जब मौका मिलता है तब ये कह रहे हैं कि नारी का सम्मान कर रहे हैं तुलसी जी, नारी का अपमान नहीं कर रहे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह भारतीय सनातन संस्कृति है। नारी का पूजन अर्थात नारी के ओपिनियन को वैल्यू। दाराहा सफलाहा कैसे बनेंगी? रिप्रोडक्शन ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द वर्ल्ड हैज टू गो ऑन, लेकिन वो संतान केवल होमोसेपियंस न बने, वो संतान संस्कारी बने, उनका जन्म से लेकर पालन पोषण करना वो सब ध्यान रखे। उसके साथ में नारी प्रोएक्टिव बने, पावरफुल बने, सक्सेसफुल बने। And that can be achieved by equal and meaningful participation in family, at the family level, at social level, at national, international, and most importantly, spiritual level. And lastly, कच्चित्ते सफलम श्रुतम। कई बार मैंने प्रवचनों में कहा है, ईस्ट एंड वेस्ट बोथ आर वंडरफुल if we can join them with a wonderful friendship bridge. Extremes are wrong. हम केवल आंख बंद करके कह दें कि पश्चिम बुरा है, वो भूल होगी। या तो पश्चिम आंख बंद करके कह दे कि पूर्व आउटडेटेड है, वो भी भूल होगी। आज भी दोनों अपने अपने क्षेत्र में बहुत रेलेवेंट हैं। पश्चिम में विद्वान के लिए शब्द है वेल रेड, जिसने बहुत पढ़ा है। इन संस्कृत द वर्ड फॉर अ स्कॉलर इज बहुश्रुत। केवल बहुत पढ़ा है उसके हमारे यहां वैल्यू नहीं है, जिसने बहुत सुना है उसकी वैल्यू है। और इस अर्थ में मैं बापू को हमेशा बहुश्रुत कहता हूं। बापू ने कहा भी है कि मुझे बहुत सुनना है, मुझे बहुत सुनना है। नडियाद कथाओं बापू आपे कहूं तो कि मुरारी बापू ने बहु सांभळवू छे, बहु सांभळवू छे। यहां से जो भी प्रकट हो रहा है वो वेल रेड नहीं है, बहुश्रुत है, जो व्यासपीठ से प्रकट हो रहा है। कच्चित्ते सफलम श्रुतम, ये सफल हुआ कब होगा? when shrutam, what we hear or maybe what we read is translated into action, वो हमारे जीवन में आए। और ये जब हो, मेरी श्रद्धा है कि ये राम कथा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नींव में, फाउंडेशन में एक मजबूत पत्थर बनके युगों युगों तक स्थिर रहेगी। और इसके ऊपर सनातन विचारधारा का सुंदर मंदिर बनेगा, जिस पर ऋषि संस्कृति का ध्वज सदियों और सहस्राब्दियों तक लहराता रहेगा। ये मेरी सद्भावना के साथ आयोजक परम भगवदीय डॉलर भाई संध्या बेन, इफ यू कैन कम हियर फॉर अ मिनट। पावन आए प्रसादी भगवान की मैं लेकर आया हूं, तो पूज्य बापू के आशीर्वाद से पहले आप आइए जी। એન્ડ લાસ્ટલી, આવા અનેક ફ્લાવર્સનો સુંદર બગીચો બનાવનાર આ બાગબાન, આ માળીને મારા ખૂબ ખૂબ પ્રણામ.